Hello students, today we will discuss the topic ratio analysis, right? It is another tool for financial statement analysis, right? So we will understand what is ratio and what is its importance, okay? So let's see. So what is ratio? It is relationship between two figures expressed in arithmetical term, right? तो arithmetical term means जिससे हम लोगों ने पढ़ा था x is to y, that is x upon y. So that is called the ratio. So what we are doing, we are expressing relationship between x variable and between the y variable in the form of x is to y, right? So they can be expressed in four ways. Number one, proportion. Now, as we calculate current ratio, the formula is current assets upon current liabilities, right? So the ideal ratio says 2 is to 1. Okay? So it means current liabilities or current assets should be twice of current liabilities. So that is the proportion. मतलब जो हमने x is to y की बात की ना, x upon y में, so current ratio CA upon CL, current assets upon current liabilities. So this is called proportion way to express. Another is rate or so many times, right? So for example, we calculate debtors turnover ratio, right? Debtors turnover ratio means कि अगर हमने उधार पे कोई गुड्स बेचा है, that is हमने क्रेडिट सेल्स की है और हमारे डेटर्स कितने हैं, right? तो it is credit sales upon debtors. So suppose credit sales is rupees 2 lakhs, debtors rupees 40,000. So 2 lakhs upon 40, that becomes 5. So it's called 5 times. अब यहाँ पे क्या था, आपने प्रोपोर्शन में रेशियो निकाला, 2 is to 1 निकाला था, यहाँ क्या निकाला है, so many times, यानी डेटर्स के 5 टाइम्स हमारी क्रेडिट सेल्स है, राइट? नेक्स्ट वन इज परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इट इज जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100. तो व्हाट एवर बी द ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट एवर बी द सेल्स इनटू 100, दैट गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. That becomes a percentage way of presenting the ratios. Next is fraction. Fraction means suppose net profit is 1/5 of the capital, right? So capital मान लिया अगर 2 लाख है, net profit 40,000 है, तो it means 1/5 of the capital. तो हमने कैसे क्या किया, हमने fraction present किया. So these are the four ways: proportion, rate or so many times, percentage and fraction. These are the four ways in which we express our ratios, right? As you see, there's balance sheet, there's profit and loss account, and there are so many accounting data in that. So these are very complicated. So to make it very simply understandable, to make your financial statement analysis, what we used to go for? We used to go for ratio analysis, in which we find out certain types of ratios that we'll discuss later on. There are liquidity ratios, profitability ratios, solvency ratios, activity ratios. We calculate such ratios so that these data can be used to analyze the real financial position of the business. So let's see its importance. Importance number one, helpful in analysis of financial statement. As we have discussed कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, बैलेंस शीट आ जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है. अब इसमें कई सारे डेटास होते हैं जिनको हमें कैलकुलेट करने में या एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्या करते हैं लोग, रेशियो एनालिसिस करते हैं. कई सारे रेशियोज निकालते हैं जिनको हम स्टडी करके हम आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं. सिमिलरली सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा. अकाउंटिंग डेटा को आसानी समझ सकते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, make it simple, and we can analyze our accounting statements. Then there's comparative study. हमने previous years के भी ratios निकाले, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था comparative में, common size में. अब इसमें क्या किया हमने, जैसे ratios हम इस साल के निकाले, ऐसे हम लोग ratios पिछले साल के भी निकालेंगे, right? तो जब हमारे पास 2 साल या 3 साल ratios मिल जाएंगे, तो हम आराम से comparative study कर सकते हैं. हम डेटा को comparison कर सकते हैं, compare कर सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पहले क्या थी और अब क्या है. सपोज एग्जांपल डेटर्स टर्नओवर रेशियो बात की, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारे पहले क्या थी और आज क्या है, राइट? जीपीआर हमारा ग्रॉस रेशियो पहले क्या थी और अब क्या है. जैसे जीपीआर है
जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो अब देखना क्या है कि अब पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, राइट। तो दैट मेक्स अ कंपैरेटिव स्टडी, और ये और ज्यादा सिंपलर बना देता है। नेक्स्ट इज लोकेटिंग वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो, और आइडियल रेशियो क्या होता है इसका 2:1 होता है, राइट। तो अगर 2:1 से ऊपर है, जैसे 3:1 जा रहा है तो बेटर है, लेकिन अगर मान लीजिए 1:1 है या 1.5:1 है तो क्या होगा, ये हमारा वीक स्पॉट है। इसका मतलब हमारी करंट लायबिलिटी ज्यादा है और करंट एसेट्स हमारी कम हो रही है। तो हमें ये कंपेयर करना होगा कि हमारी करंट एसेट्स हमेशा ज्यादा रहे इन कंपेरिजन टू करंट लायबिलिटीज। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एनालिसिस करके वीक स्पॉट्स निकाल सकते हैं बिजनेस के, और उनके फिर रेमेडियल रेक्टिफिकेशंस हम लोग कर सकते हैं। देन देयर इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग से हमने निकाला डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या हमने निकाला क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, या हमने निकाला इन्वेंट्री। तो इससे हमें ये पता चलेगा हमें कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए, हमें वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, हमारे पास करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए। हम कई सारे एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं और इन फ्यूचर के लिए हम अपने आप को आज से तैयार कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से आगे काम करना है, what sort of decision should we take so that जिन रेशियोज हमारे कम है उनको रेशियोज हम बढ़ा सकते हैं, जो रेशियोज को कम करना है उनको रेशियोज हम लोग कम कर सकते हैं। यानी हम लोग कुछ रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं या रेक्टिफिकेशंस के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एस्टिमेट अबाउट ट्रेंड ऑफ बिजनेस। हमने जीपीआर निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला हमने। तो हम क्या करें, एक ट्रेंड ऑफ बिजनेस की बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट किस ट्रेंड में जा रहा है। हमारा बिजनेस हो सकता है प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन प्रॉफिट होने का पेस कम हो रहा हो। जीपीआर तो है हमारे पास, लेकिन जीपीआर पिछले साल से कम है, या पिछले साल से कम है, या पिछले साल से ज्यादा है, या हमें कहाँ पे क्या काम करना है जिससे हम जीपीआर अपना और बढ़ा सकते हो। तो दैट वी कैन एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, कि हमारा वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लगातार बढ़ता रहे। नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड्स। नाउ दिस आइडियल स्टैंडर्ड मींस, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि हमारा CA/CL जो करंट रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, राइट। हमारा GPR ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, NPR ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि हमने आइडियल रेशियो फिक्स किए हर रेशियो में। अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो डिस्कस करेंगे उसमें जो भी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे हम आपको उसके आइडियल रेशियोज की कंडीशंस बताएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यार हमने लिया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज करंट रेशियो, और वो होना चाहिए हमारा 2:1। तो ये एक आइडियल स्टैंडर्ड है। अगर इसके ऊपर इससे कम जा रहा है तो हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हमारी एसेट्स कितनी होनी चाहिए, हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग कई सारे रेशियोज निकालेंगे, उसके हर रेशियो के अपने आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं। इससे फायदा क्या हो गया, हमें एक स्टैंडर्ड मिल गया, एक लेवल मिल गया जिसके हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन बेहतर जा रही है या हमारी वर्सन की ओर जा रही है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। जब हमारे पास सारे डेटाज हो गए, हमने रेशियोज कैलकुलेट किए, इट मींस हमको ये पता है हमें क्या क्या रेक्टिफिकेशंस करने हैं, क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स लेने हैं। तो क्या हो गया, हमारी जितनी चीजें हो रही है, एक्टिविटीज जो भी हो रही है हमारी बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जहां जहां अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जहां जहां अननेसेसरी के हमारे पास हर्डल्स आ रही हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी कहानी किस लिए आएगी, फॉर स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। हमारा बैलेंस शीट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम स्टेटमेंट है, ये हमारे एनालाइज करता है कि अब हम कितने फाइनेंशियल साउंड हैं, हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। सो दैट्स वी ऑल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। क्योंकि जितना ज्यादा लिक्विडिटी स्ट्रांग होगी, जितना ज्यादा आपके पास फंड होगा, जितना ज्यादा कैपिटल होगा, आप उतना ही अच्छा और बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन अंडरटेक योर बिजनेस एक्टिविटीज मच बेटर देन इट, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी types of ratios and their ideal standards. For here you have to study ratio, the ways in which you have to express and their importance, right? Thank you.